हमारा कंसर्न आप लोगों तक पहुँचाइए, पब्लिक तक पहुँचे। ये सारा मामला जिसको हम समझ रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंस का हो गया है। उसकी वजह ये है कि अब फिज़िकल असॉल्ट्स डॉक्टर्स पे होना ये कोई नई न्यूज़ नहीं लगती और दिन ब दिन ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। मेरे साथ जो मेरे साथी हज़रात बैठे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर टीपू सुल्तान हैं जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सेंटर के प्रेसिडेंट हैं। उनके बराबर में डॉक्टर वक़ार काज़मी हैं। वक़ार साहब प्रिंसिपल हैं कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज के। मेरे साथ डॉक्टर समरीना हाशमी बैठी हैं, ये प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सिंध की। मेरे बराबर में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सलमान साहब बैठे हुए हैं। इनके साथ हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के ऑफिशियल डॉक्टर आफ्ताब गनी साहब बैठे हुए हैं और हमारे पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर इम्तियाज़ बैठे हुए हैं। तो हमारे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सेंटर के जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा अली अज़हर साहब ने अभी ज्वाइन किया है और अभी सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट और मेडिकल एड कमेटी के डॉक्टर फारूक जमील इज ऑन हिज वे। सर एक कुर्सी लगाएं और सर को बिठाएं। ये हमारे कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन ये प्रेस रिलीज जो हम लोगों ने बनाई है आपको पेश करने के लिए वो बताऊंगा। इसके बाद विल शो यू द क्लिप्स ऑफ द प्रेस रिलीज मैं कर रहा हूँ। इसमें हमारा सीरियस कंसर्न है। Dear friends, surrounding everybody, first of all, we are thankful to you for your presence in the press conference. The issue which we are going to discuss today is not new. The medical profession, being a noble one, like other professions, carries the risk of complication. We all know that. Most of the time, these complications are beyond our control. Unfortunately, the results of these complications are not acceptable to the family of the patient, and this intolerance has been created fairly recently by so many factors which we're going to talk about. In these circumstances, the mob justice plays a role where the law doesn't exist. Unfortunately, in Karachi, in Pakistan, doctors and the paramedics are brutally beaten, hospital property is damaged, and some FIRs are lodged. As a result of this chain of events, the doctors were picked up by the police in the middle of the night, resulting into CVA, that is college, to his father very recently, who was hospitalized for 2 months because this gentleman could not bear the insult of his son. Police coming in the early hours of the morning to arrest his doctor, his son who happened to be doctor. The medical associations and the other organizations of the medical profession have been protesting against this practice for a long period of time now. Once again, the same thing has happened. A critically ill child, which is the focus of society, with 9 months, was brought to the hospital in North Nazimabad, or the Imam Clinic है. Due to its nature of the disease, the child expired on 1st of October. ये 29 को पेशेंट आया था हॉस्पिटल के अंदर और 1st अक्टूबर को he expired. The child expired. It was a natural death. The family of the patient launched the FIR against the doctor, treating the patient. This time a new thing happened, and that was last evening. That a TV channel,
and I seek your attention for that. The TV channel got unnecessarily involved in this matter. They came, अभी हम आपको वीडियो भी बताएंगे इसकी. They came to the hospital yesterday night, last evening, with their cameras and guns. Now this has to be noted and highlighted. We'll show you the clips. They misbehaved with the doctor, calling him a murderer and threatening him with the dire consequences. This is all media personnel. After that, they started running misleading footage in the channel claiming to be attacked by the doctors and staff of the hospital. और ये पूरी रात चलती रही. रात को कम से कम 4 बजे तक मैंने देखी. This situation is absolutely not acceptable to the doctors community. In such case, we have always been saying that there should be impartial inquiry. This mishaps can occur anywhere in the world, and this has to be inquired before this could be called as negligence or murder, as it has been called. Pakistan Medical Association and all the sister organizations, including Pakistan Islamic Medical Association and with the Association of the Doctors, has already mentioned a health bill, and that was with the consent of all the sister organizations, to the Sindh government in this regard, because we want the patients should be given the rights the patient needs. ये अपने गार्ड्स के साथ है, ओपन गन के साथ हॉस्पिटल के अंदर. डॉक्टर के ऑफिस की नहीं है, जिस पर उन्होंने चार्ज की है बाकायदा, वो नहीं है. वो प्राइवेसी की चलो आप दिखा दो. Now ये आउटपेशेंट है और आउटपेशेंट में बगैर किसी की इजाजत के ये they are barging in to the doctor's office. ये गार्ड जो है हॉस्पिटल के है या प्लेस के है? इनके साथ आए. चलिए पहले दिखा दें. ये देखिए रोड करके ये फाइल बेसमेंट से बाहर की तरफ अब नाम बताने चैनल का सर आप बात कंफ्यूज ना करें चीजों को. जब भी जाएगी मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक आपकी तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि ये जैसा आपने फरमाया कि ये बढ़ता जा रहा है. मैं एक छोटी सी बात पॉइंट करना चाहता हूँ कि इस वक्त हम डॉक्टर हजरात जो कि टारगेट किलिंग के शिकार में रहे, मुख्तलिफ अस्पतालों में ये जो इस वक्त डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं और बहुत करेंगे तो अब हम किधर जाए. मेरा गिला शिकवा बहुत ही सीरियस है कि हमारे जर्नलिस्ट जो हमारे सफर ताल्लुक रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, एक टीवी चैनल में काम करते हैं, वो अगर इन बंदूक वालों के साथ और कैमरे के साथ हरासमेंट करने के लिए आए, उसका फिर बंदूक की नोक पर वो इंटरव्यू लेने की कोशिश करें, उसका हरास करें,
तो फिर ये बताइए कि इस महजब माशरे में अब हम किधर जाएं? डॉक्टर लोग क्लिनिक कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें और किसी मरीज का इलाज कैसे करें? ये मेरा बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है। मैं सारे जर्नलिस्ट भाइयों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई आप उस साइड क्यों खड़े हो रहे हैं, उन क्रिमिनल के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? आप किसी को भी किसी सवाल की सवाल बहुत है डॉक्टर, इसलिए क्या है आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने तो ये फुटेज दिखाई और उससे डॉक्टर ने स्टेब्लिश कर दिया है कि ये हैरेसमेंट के लिए आए थे जर्नलिस्ट आपके पास और गन पॉइंट पे आपसे इंटरव्यू ले रहे थे। ये दो बातें बहुत बात है, ये काइंड है इसका। ओके, आपने एक और मसला उठाया कि फाइलेज फिल कर ले गए, आपके पास लीगल ऑप्शन थे कुछ, आपने कुछ उनको परसू किया क्या बताएगा? उस दिन भी जिस दिन फाइलें छीनी गई FIR कटवाई है उनके लिए, और कल भी बाकायदा नाम लेके FIR कटवाई गई है। और हम इस बात जी कल जो साहब जिन्होंने आके नाम तो होगा ना उसका, फर्स्ट वाली डॉक्टर साहब आके वो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर्स लेकर आए थे वो लोग, और उन्होंने डॉक्टर के अगेंस्ट FIR कटवाई। फाइल की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है कि वो ले गए हैं। और कल डॉक्टर के खिलाफ, जर्नलिस्ट के खिलाफ जी फाइल की हमने रिपोर्ट कराई है ना, बिल्कुल कोई पूछ रहे हैं। और कल जो है जमील फारूकी साहब के नाम, फाइल होने की रिपोर्ट के खिलाफ फहीम सिद्दीकी साहब के नाम जो उठा के लेके गए हैं। FIR नहीं है, रिपोर्ट लिखी है थाने ने, क्योंकि SHO जी 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 बिल्कुल सब देते हैं, फोटोकॉपीज देते हैं, बिल्कुल फिक्र नहीं करें। और ये जो कल वाला पूछ रहे हैं मुख्तार आलम साहब, वो कल जमील फारूकी जो सड़क किनारे प्रोग्राम करते हैं उनके और मरीज के वालिद साहब जो है अफसलान, उनके खिलाफ बाकायदा हमने थाना नूरजहां में FIR कटवाई है। और हम ये हक महफूज रखते हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेके जाएंगे, क्योंकि हम ये अपने इस मुल्क में 10-10 साल बाहर गुजार के इसलिए नहीं आए थे कि जिसका दिल चाहे हमारे सर पे आके कूदे, ठीक है? हम पढ़ लिख कर इसलिए इस मुल्क में आए थे कि यहाँ पर हम काम करेंगे। किसी महज़िब माशरे ने किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी है कि वो किसी को मुजरिम करार दे, क्योंकि मुजरिम सिर्फ आप उस वक्त करार देते हैं जब अदालत एक फैसला करती है कि वो मुजरिम है। आप किसको मुजरिम खासे कंफ्यूज है। सर 2 मिनट मेरी बात सुन, थोड़ी सी मैं बात अपनी भी कर लूं, ठीक है? देखिए, हमने बहुत दिन से गुज़िश्ता 1.5 साल से एक हेल्थ कमीशन बिल दिया हुआ है सिंध गवर्नमेंट, जिसमें मरीजों के राइट्स भी हैं कि कहाँ जाके मरीज अपनी शिकायत लिखवाएगा, उसमें डॉक्टर के राइट्स भी हैं, उसमें ये भी है कि डॉक्टर को एक एसेंशियल सर्विस मैन कंसिडर किया जाए और वो ड्यूटी पर है तो उस पे हाथ उठाने वाले को ये सजा दी जाए। जो मरीज शिकायत अपनी दर्ज कराए उस पे 15 साल के तजर्बे वाले डॉक्टर्स बैठे और कमेटी फैसला करे कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, जैसे मुहज़्ज़िब मुल्कों में होता है, वो कमेटी फैसला करे कि ये नेग्लिजेंस हुई है या नहीं हुई है। जब तक ये चीज असेंबली ये इशू उठा चुके हम, और ये जो बिल है ये पंजाब असेंबली में नवंबर 2010 में एक्ट बन चुका है, वेट हुआ हुआ बिल है। उसको क्या मसला है कि सिंध असेंबली में नहीं वो पास हो सकता? आखिर क्यों इसके पीछे इतनी रेजिस्टेंस है? कौन लोग हैं जो इसको इतना रेजिस्ट कर रहे हैं और नहीं आने दे रहे हैं इस बिल को? आप लोगों को इस पे बात उठानी चाहिए। उस बिल के अंदर अस्पतालों की रेगुलेशन है, अस्पताल कैसे रजिस्टर होंगे, उनमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी तब वो रजिस्टर होंगे, ये उसके अंदर है। और हमने आजाद कमीशन उसमें शो किया है, एक आजाद कमीशन होगा, सिर्फ मामला कहाँ अटका हुआ है, गवर्नमेंट चाहती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उस कमेटी में हो, उसका नतीजा ये होगा कि हम एक सेक्शन ऑफिसर के अंडर होंगे, 50 लाख रुपए लेके वो अस्पताल को रजिस्टर करेगा और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन नहीं होगी और हम उसके पीछे पीछे दो मिलाते फिरेंगे। दैट्स वी डू नॉट वांट। हम चाहते हैं एक आजाद कमीशन हो जो उस बिल के हिसाब से बनाया जाए, उस बिल के हिसाब से 15 साल के तजर्बा रखने वाले डॉक्टर ये फैसला करें कि नेग्लिजेंस हुई है या नहीं हुई है। उसके बगैर आप किसी को मुजरिम नहीं करार दे सकते। क्यों कल डॉक्टर को कातिल कहा गया, क्यों कल डॉक्टर को मर्डरर कहा गया, मुझे
इस चीज का जवाब चाहिए। क्या आपने प्रूव किया था कोर्ट में इस चीज को? नहीं किया था। तो आप कैसे, मैं कल को पकड़ लूं उन्हें और कहूं तुम काफिर हो? ऐसे थोड़ी होता है कोई। फिर आप फिल्में चला रहे हैं, फिर आप टीवी पे, हमारे हाथ में मीडिया नहीं है तो क्या मतलब कि आप इसका फायदा उठाएं? ये तो ज्यादती है ना, ये आप जुल्म कर रहे हैं। मैं चली जाऊंगी मुल्क से बाहर, मैं क्यों आई यहाँ वापस? मुझे कोई ये बताए। अगर आप लोग सुकून से हम लोगों को काम करने नहीं बुढ़ापे में ट्रीट करने के लिए कोई काबिल डॉक्टर इस मुल्क में नहीं होगा। क्वालिफाइड डॉक्टर्स हम ये सुनने के लिए नहीं बैठे। हम रात को अपने सर पे गन्स क्यों देखें? अपने क्लिनिक्स में बैठ के क्यों देखें हम गन्स? हमारे बच्चे हैं, हम घरों में जाते हैं अपने, हम इसके उस वक्त अस्पताल, दूसरे बच्चे मौजूद थे अस्पताल में, उन डॉक्टर साहब के क्लिनिक में औरतें मौजूद थी। खुदा न खास्ता गोली किसी को लग जाती, स्ट्रे बुलेट किसी को लग जाती, उन्होंने बाहर हवाई फायरिंग भी की है, तो फिर क्या होता? ये ज्यादती के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएं प्लीज, हमारे साथ मिल के आवाज उठाएं। हम आपको मुजरिम नहीं कह रहे, आप हमें मुजरिम नहीं कह रहे, हमने साथ काम करना है। आपकी बीवियां, बच्चे, बेटियां, बहुएं हमारे पास आती हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। कल को आपका भी कोई आएगा हमारे पास इलाज करने के लिए, तो क्या हम मीडिया वालों को लेना बंद कर दें? हमसे आइंदा से पाबंदी लगा दें? किसी का कोई रिश्तेदार अगर ये प्रूव हो कि मीडिया से ताल्लुक है, हम नहीं ले उसको आइंदा अस्पताल में। क्या हम ये करें? हम ये नहीं करते। डॉक्टर मजहब देखे बगैर, किसी का फितना देखे बगैर, किसी की शक्ल देखे बगैर उसको ट्रीट करता है, तो फिर हमारे साथ मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब चाहिए। डॉक्टर को काफिर कह रहे हैं ये, लेकिन उनकी अपनी प्रीवियस रिपोर्ट कैसी है, कैसे केस हैंडल किए हैं, अच्छी चीजें भी दिखाया करें। Azhar Chugtai has been regarded as one of the best pediatricians in the world. अटैक हो रहा है क्लिनिक पे, नया तरीका अख्तियार किया जा रहा है कि मेरा मरीज को पहले देखो। अब अगर मरीज वो कहता मेरा मरीज इमरजेंसी में, डॉक्टर लेना भी चाहते हैं दूसरे मरीज। अब हमारे जो एक डॉक्टर क्या मौजूद है, 18 साल या 20 साल की प्रैक्टिस फ्रंटियर कॉलोनी में की, इनकी क्लिनिक पे फायरिंग हुई, इनको वहां से भागना पड़ा और यहाँ तक के इनके घर तक के इनका पीछा, और आज तक वो अपनी क्लिनिक पे जा नहीं सकते। दूसरे डॉक्टर हमारे एजाज हैदर जैटी हैं, सबूरा कोर्ट पे उनकी क्लिनिक तोड़फोड़ हुई, इनकी गाड़ी तोड़फोड़ हुई, इनकी FIR कटवाई डॉक्टर साहब की, डॉक्टर जफर है, डॉक्टर जफर फारूकी, उन्होंने यहाँ भी PMA के सामने वो आए और सारी बातें की। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हॉस्पिटल भी बंद होगी और मतलब भी बंद होगी, तो इलाज मानने का किस तरह से? हम आपसे ताउन चाहते हैं कि आप इसमें ताउन करें और मीडिया सही रोल अपना अदा करें। देखिए, मैं मुख्तार आपको अभी बात करता हूँ, क्योंकि मुख्तार साहब ने तीसरा सवाल किया तो मेरे जहन से निकल गया, और ये पर्टिनेंट सवाल है। वो ये कहा उन्होंने कि हमने इनकार किया है कि हम मीडिया के पर्सनल को ट्रीट करना बंद कर दें। हमने ये नहीं कहा, समरीना ने किया, समरीना ने इस तरह कहा है, और ये मेरे साथ बैठी हुई है, ये कहा है कि इन हालात में क्या हम ये कहें कि मीडिया के पर्सनल को ट्रीट कर